اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathore. The motive of this program is to teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, we take up a new lesson which consists of verse number 17 to 19 of Suratun Naml. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that God's blessings may shower upon us. So let us listen to these verses respectfully by Qari Ghulam Hassan Al-Hasni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Dear viewer, you were listening the recitation of Al-Quran, and we feeling the sweetness and grandeur of Holy Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting and breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. وَحُشِرَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ
जुनूदुहु जुनूदुहु मिनल जिन्नि मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अतौ अला वादिन नमली अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु या अय्युहन नमलु उदखुलू या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु सुलैमानु वजुनूदुहु वजुनूदुहु वहुम ला यशउरून वहुम ला यशउरून فتبسم ضاحكا من قولها ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we take the last and final segment of our program, in which we give you the recitation of these holy verses in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic. And just after this, we translated these verses particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this text is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير
فهم يوزعون. In Roman, وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والطير فهم يوزعون. In उर्दू, और फराम किए गए सुलेमान के लिए लश्कर जिनों, इंसानों और परिंदों से, बस वो नज़्म ज़ब्त के पाबंद है. In English, and there were gathered for Suleiman his armies amongst jinn and men and birds. Then they were set in battle array. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. In Roman, حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. इन उर्दू, यहां तक के जब वो गुजरे चींटियों की वादी से तो एक चींटी कहने लगी, ऐ चींटियों, घुस जाओ अपने बिलों में. In English, until when they came to the valley of the ants and said, O ants, enter your houses. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. In Roman, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. इन उर्दू, कहीं कुचल कर न रख दे तुम्हें सुलेमान और उनके लश्कर, और उन्हें मालूम ही न हो कि तुम पर क्या गुजरे और उन्हें मालूम ही न हो कि तुम पर क्या गुजर गई. English, lest Suleiman and his armies may crush you unknowingly. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. In Roman, فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل इन उर्दू, तो सुलेमान मुस्कुरा दिए उसकी बात से और अर्ज करने लगे, मेरे मालिक, मुझे तौफीक दे ताकि मैं शुक्र अदा करूं तेरी नेमत उज़्मा का जो तूने मुझ पर फरमाई और मेरे वालिदैन पर. In English, thereupon he smilingly laughed at her words and said,
O my Lord, grant me guidance that I may be grateful for your favor which you have bestowed upon me and my parents. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. In Roman, وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. In Urdu, नीज मुझे तौफीक दे कि मैं वो नेक काम करूं जिसे तू पसंद फरमाए और शामिल कर ले मुझे अपनी रहमत के बायस अपने नेक बंदों में. In English, and that I may do such good works as would please you, and admit me out of your mercy among your those bondmen who deserve your proximity. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा और अपने प्रॉमिस के मुताबिक आखिर में हम इन आयात की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पेश किया करते हैं. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया जा रहा है और पूरी अक़वाम आलम में और पर्टिकुलरली जो रिलीव्ड रिलीजन्स हैं उनमें इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है, रिलीजन है कि जो कि हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ अज़मत और फ़जीलत का इक़रार और एतराफ़ करते हैं, वहीं पर पिछले तमाम अंबिया इकराम रुसुल इज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम का भी इक़रार करते हैं, ईमान लाते हैं, उनकी आज़मत, उनकी हक़ानियत, उनकी फ़जीलत को, उनके ग्रेटनेस को बयान किया करते हैं. लिहाजा आज मुसलमान ये इम्तियाज़ी हैसियत रखते हैं और कुरान वो वाहिद किताब है जो पिछले तमाम अंबिया का जिक्र फ़जीलत के साथ और आज़मत के साथ किया करती है. चनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम के हम फॉलोवर नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के नबी हैं, इसलिए कुरान में उनका जिक्र बयान किया गया उनकी आज़मत के साथ. और यहाँ पर जो आज़मत बयान की जा रही है वो ऐसी है कि आज का जदीद इंसान जो कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मरीख के मदार में दाखिल हो गया है, चांद को सर कर लिया है, आज का इंसान भी हैरान और अंगुश्त बदंदा रह जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मकाम से गुजरते हैं, एक चूंटियों का ग्रोह उस मकाम पर मौजूद होता है, कुछ ग्रुप ऑफ आंट्स होती हैं और एक आंट एक चूंटी दूसरों से कहती है कि हत्ता इदा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ, अपने घोंसलों में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, ये ना हो कि उनकी घोड़ों की टापों तले तुम रोंदी चली जाओ और उन्हें खबर भी ना हो. चुनाचे ये चूंटी इधर कह रही है और उसने कहा कि ला यशऊरून, उन्हें पता नहीं चलेगा. लेकिन 2 मील के फासले पर जो मुफस्सिर ने लिखा कि चूंटी ने तो कहा उन्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, कि 2 मील के फासले पर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ मौजूद है और चूंटी की आवाज़ वो सुन लेते हैं, 2 मील के फासले से सुन लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं. अब अंदाज़ा लगाइए कि आज साइंस तरक्की कर गई है, इंस्ट्रूमेंटल साइंस है, लेकिन आज तक साइंसदान इंसान दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सका है जो किसी आंट या चूंटी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर ले, करीब से भी नहीं कर सकता. लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये ताकत और सुनने की ताकत अता फरमाई है कि 2 मील के फासले पर भी वो चूंटी अपनी दूसरी चूंटियों से कह रही है और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी इस बात को समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुनकर मुस्कुरा भी रहे हैं. उस चूंटी ने भी यही कहा था, उन्हें मालूम नहीं होगा, शायद आज भी कोई ये समझता हो कि नबी को पुकारते, जब लोग पुकारते हों तो कोई सुन ना सकता हो, नबी सुन ना सकता हो. लेकिन कुरान की इस बात से मालूम हुआ कि नबी तो चूंटियों की आवाज़ों को सुन लेते हैं और जब नबी का गुलाम कहीं से बैठकर नबी को पुकारेगा तो
तो फिर यकीनन नबी सुन लिया करते हैं। इसलिए हमारा यह अकीदा और ईमान है, हम जहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। जब सुलेमान की समाअत का यह आलम है तो वो सुलेमान जो मेरे आका की बारगाह में मिसले गुलाम है, तो आका की समाअत और शान का आलम क्या होगा, यकीनन आप बेहतर समझ सकते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और महासिन व महामिद को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल